जी बिल्कुल शुरू करें। Miss Nafisa, wife of Ghulam Yasin, 35-year-old, having no formal education, housewife, resident of Multan, 1 hour distance from the hospital, blood group B positive, marriage for 15 years, first marriage of both partner in non-consanguineous relationship. Para 3, having 1 miscarriage at second month of gestation, followed by DNC. Last child born was 18 years back. Came to Nishtar OPD to Nishtar Hospital Multan with the complaint of parvaginal discharge for 1 year and complaint of lower abdominal pain for 4 months. Patient was her usual state of health 1 year ago when she developed parvaginal discharge, which is gradually in onset, yellowish in color, copious in amount, thick in consistency, not blood stain, associated with the lower abdominal pain and off and on fever. Discharge having no relationship specifically after and before the menstrual cycle. It occurs all the time. ये Patient having डिस्चार्ज, बेटा डिस्चार्ज जरा दोबारा बता दीजिए। ओपियस है, ठीक है, और क्या है? ब्लड स्टेन, yellowish in color, thin in consistency, copious in amount, associated with lower abdomen pain and fever off and on, foul smelly, not associated with itching and not blood stain. ठीक है। Discharge is not specifically associated with menstrual cycle. Before and after the menstrual cycle, it remains all the time. My patient having complaint of lower abdominal pain for the last 4 months. Initially, it was mild to moderate, dull and continuous in nature. Now it becomes moderate to severe and continuous in nature, radiating towards the thigh and back, becomes more severe while doing household work, and relieved to some extent by using oral painkiller in the form of tablet Panadol and tablet Brufen. She also having complaint of pain during menstruation, which start at the start of menstruation and remain mild to moderate throughout the menstruation and stopped at the end of the menstrual cycle. She also having complaint of pain during intercourse, and the pain the pain become more severe at the in between the coitus, and sometimes she have to stop coitus due to pain, and it remains after the coitus also. Due to that, her coital frequency has been reduced 1 to 15 days. My patient having no history of evening chronic cough with evening rise of temperature, tuberculosis in her, and any contact to tuberculosis patient. My patient having no history of smoking, no history of drug addiction. If our first coitus was at the age of 20 years and having no HPV vaccine initial before coitus. Her husband is a laborer, and he is doing work out of city, and she having no contraception, and she having contraception permanent in the form of bilateral tubal ligation. My patient and her husband having no extramarital affairs. She having no history of consulted to any doctors for this discharge, and she did not took treatment before. She menarche at the age of 13 years. Her cycle was regular with average flow, that is 1 to 2 days after every 20 days, and she used to do use 1 to 2 pads per day. She having no history of pain during coitus and menstruation. She having pain during coitus and menstruation before, and she having no intermenstrual and postcoital bleeding. Pap smear was never taken, and couple having contraception in the form of permanent method bilateral tubal ligation during the last cesarean section. She is para 3. Her first baby was boy, that is 14-year-old, and her second pregnancy ended in the form of miscarriage followed by DNC, and third baby was girl, that is 13 years old, and fourth baby is boy, that is 8-year-old. All she having no history of any complication intrapartumly, antenatally, intrapartumly, and postpartumly. Her all babies are alive and healthy, vaccinated, breastfed and vaccinated. She having no history of diabetes mellitus, hypertension, tuberculosis, asthma, and ischemic heart disease in her and in her family. Is she having no history of any surgical intervention except cesarean section? And she having adequate sleep and bowel habit with normal appetite and normal appetite and sleep.
Her husband is a laborer and her daily necessities of life met with ease. A 35-year-old with a height of 5 foot 6 inch and a weight of 60 kg, sitting comfortably on bed, well oriented to time, person, place. On her general physical examination, her blood pressure is 120 by 80 millimeter of mercury. Her pulse rate is 86 beats per minute. Her respiratory rate is 16 breath per minute. Temperature is 98 Fahrenheit. Thyroid is not enlarged. Accessible lymph nodes are not palpable. Spine is non-tender centrally placed. There is no sacral impeded edema. Hernial orifices are intact. Her abdomen is flat with centrally placed inverted umbilicus moving with the rest. Oh, sorry. And moving with the equally with the respiration on her equally with the respiration. And there is a apnasial scar above the symphysis pubis. Is there is no visible veins and pulsation on superficial palpation. There is a tenderness in lower abdomen, and on deep palpation there is no visceromegaly and no tenderness in right upper quadrant. On pelvic examination, vulva is looking normal with normal hair distribution. And on speculum examination, there is a yellowish copious amount in of discharge present in pouch of ductless vagina and cervix looking normal. On bimanual exam, pap smear was high vaginal swab was taken. Vaginal and walls and cervix looking normal. On bimanual examination, uterus is 8 week size, retroverted, with restricted mobility, tender. And bilateral furnaces are also tender, fullness in the right furnace. On her breast is looking normal with the normal areola nipple complex, no lump palpable in all four quadrant. Her bilateral equal vesicular breathing with no added sound. Her apex beat is palpable in fifth intercostal space medial to the midclavicular line. जी मैम हो गया. ठीक है, मैम समराइज करो. A 35-year-old, previous 3 cesarean section, having bilateral tubal ligation, came with complaint of parvaginal discharge for 1 year and pain lower abdomen for 4 months. On examination, abdomen is tender, lower abdomen is tender. On speculum examination, there is a yellowish copious amount thin inconsistency discharge present in posterior fornix. And on bimanual examination, uterus is 8 week size, tender, normal inconsistency, retroverted, restricted in mobility. Bilateral furnaces are tender, and there is fullness in right adnexia. ठीक है. इसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का आपने फ्लो के बारे में हमें नहीं बताया. साइकिल रेगुलरिटी, उसका फ्लो कैसा है, ज्यादा है, कम है, कैसा है? मैम मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल इसका बताया है. मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इसका रेगुलर है विद एवरेज फ्लो फॉर 1 to 2 days आफ्टर एवरी 28 days, एंड शी यूज्ड टू यूज 1 to 2 pads per day, and she having no history of dysmenorrhea, dyspareunia previously, and pap smear was never taken, and contraception in the form of bilateral tubal ligation. अब इसका मुझे आप अपना प्रोविजनल डायग्नोसिस बताइए. My first provisional is a PID with a tubo-ovarian mass. It may be tuberculous and non-tuberculous. ठीक है, PID. और second one, डायग्नोसिस ये है. सेकंड डायग्नोसिस क्या है? Second diagnosis is endometriosis with endometrioma. अच्छा, ठीक है. और adenomyosis. My third one is adenomyosis, that is least likely. एडिनोमायोसिस आपने इसके डिफरेंशियल में कैसे शामिल कर दिया? Ma'am, she having history of she is para 3, and she having history of previous 3 scar and history of DNC, and she having history of dyspareunia and dysmenorrhea. Dysmenorrhea and dyspareunia, and uterus is tender on examination. Okay, what features go in favor of PID and endometriosis? क्योंकि आपने ये जो है अब अपने diagnosis को justify करना, because so far you have been completed with the history and examination. So now justify or give your justification points in favor of your diagnosis of PID and endometriosis.
According to her history and examination, in history she is para 3 and she having history of previous scar and having history of one DNC, and she is having history of bilateral tubal ligation, and she is doing unprotected sexual intercourse. She have belonged to low socioeconomic status, and her husband is living in other city. On examination, her lower abdomen is tender on superficial palpation, and on bimanual exam on a speculum examination there is a discharge present in posterior fornix, and on bimanual examination uterus is retroverted, restricted mobility, tender, and bilateral furnaces are tender, and fullness in right furnace. Okay, what do you mean by fullness? Ma'am, she was so tender that then I cannot. I felt a little bit furnaces fullness, but I cannot appreciate the size of the mass. क्योंकि फुलनेस का लफ्ज हम बाद दफा बहुत इसको मतलब सही तरीके से यूज नहीं करते, बट इन द प्रेजेंस ऑफ टेंडरनेस you Yes, can ma'am. say I was not able to palpate it thoroughly Yes, and ma'am. precisely because the patient was tender to touch. ठीक है. Yes, Otherwise, ma'am. fullness means some adnexal mass. Mass. Yes, ma'am. Of cystic in nature. Otherwise, Yes. इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है जिसके मार्जिन्स को आप मेक आउट नहीं कर सकते. जी, Now, ma'am. considering your, क्योंकि आपने हमें अभी तक रिस्क फैक्टर बताए हैं and the points on history and the examination findings go strongly in favor of PID. Yes, ma'am. तो इसमें देयर कैन बी कोएग्जिस्टेंट सम एडनेक्सल मैस, जब पीआईडी के साथ भी एडनेक्सल मैस तो हो सकता है ट्यूबोवेरियन मैस. Yes, ma'am. What investigation you will go for? Ma'am, first of all, I will do her baseline investigation. I need a blood group RH factor that is P positive. जो आपने हिस्ट्री पे बताई थी कि डिस्चार्ज की एसोसिएशन विद मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है, तो इसमें आप क्या रूल आउट क्या करना चाहती थी by asking this question? Ma'am, I want to rule out physiological discharge. और उसकी क्या एसोसिएशन होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ? फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज कैन नॉट बी ऑफ दिस टाइप कि येलोइश भी हो, फाउल स्मेलिंग भी हो, और थिन भी हो, कोपियस भी हो. There are other parameters of physiological discharge. But anyway, coming back to this question, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ एसोसिएशन किन डिस्चार्जेस की होती है? क्योंकि बाद दफा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ हम एसोसिएशन पूछते हैं उससे हमें जो है वो टिपिकल टाइप ऑफ ना सिर्फ ये कि फिजियोलॉजिकल, लेकिन कुछ इन्फेक्टिव डिस्चार्जेस का भी हमें पता चल जाता है विच आर इंक्रीज्ड आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल, समटाइम्स इंक्रीज्ड आफ्टर क्वाइटस. तो उससे हमें थोड़ी सी उसकी डिस्चार्ज की टाइप को डिटरमिन करने में पता चलता है. तो इसमें उसकी क्या एसोसिएशन है? Ma'am, most probably bacterial discharge, mixed bacterial. It is increased and which has a typical order after coitus. ठीक है? Yes, ma'am. वो जब पेशेंट इस तरह का भी डिस्चार्ज तो उसमें भी उसका कोइटस के साथ भी रिलेशनशिप पूछा जाता है. And fungal infections, candidiasis has typically increased after the, क्योंकि vaginal जो फ्लोरा है, vaginal pH turns alkaline during the menstruation. तो उसकी वजह से वो प्रेसिपिटेट हो जाता है. अच्छा, अब इसमें जो आपने बताया था कि दिस पेन remains during menstrual cycle and is relieved after the pain after the menstruation is over. जी ये तो हमें की तरफ इंडिकेट नहीं करती. Yes, ma'am. Ma'am, in PID, pain start before the menstrual cycle and it relieves with menstruation. But you said that it remains throughout the cycle. Ma'am, I said mild to moderate throughout the cycle, and it may be her normal menstrual cycle pain. चले, ये थोड़ी सी ना समझ में आने वाली बात है. Anyway, अब हम इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे थे. इन्वेस्टिगेशन में अब आप इसका क्या क्या वर्कअप कराओगे? मैं first of all, I need baseline investigation, blood group RH factor. I need a complete blood count,
for total leukocyte for HB gram per deciliter, for total leukocyte count in cubic milliliter, and for platelet count in cubic milliliter. And I need, if the total leukocyte count is more than 1100, then I need DLC count for lymphocyte, and if it is more, then I need ESR. मैम सीबीसी में इसके भी सारा कुछ होता है, ये सीबीसी में आप उस तरह स्पेसिफाई नहीं करते कि टीएलसी होता है. टीएलसी इज अ पार्ट एंड इज अ कंपोनेंट ऑफ सीबीसी. एनीवे यू हैव टू पॉइंट आउट एंड यू हैव टू स्पेसिफाई द थिंग्स व्हिच यू गेट ऑन सीबीसी or yes ESR. ma'am these R's were normal in that patient. So I will ma'am 10. Okay. And TLC? Ma'am TLC was इसके थे 8,000. Okay. ESR? Ma'am ESR was 28. Okay. और क्या इन्वेस्टिगेशन कराओ क्या? Ma'am her lymphocyte count was the time was 30. I need hepatitis B surface antigen and anti-HCV antibody. I need complete urine examination, microscopic and biochemistry, microscopy for pus cell, and biochemistry for protein and glucose. I need I sent a Hive journal swab that was not previously done. I need a report of the Hive journal swab. Culture and sensitivity, for culture and sensitivity, gram staining, and cytology. I need ultrasonography. In ultrasonography, I need the endometrial thickness, any endometrial regularity, and any fluid present in the endometrial cavity, myometrial echogenicity, and any adnexal pathology. Ma'am, on my patient ultrasound, there is a complex cyst present that was 5.5. एक मिनट बेटा, अल्ट्रासाउंड को हम यहीं पे होल्ड कर लेते हैं. इसके अलावा आपने और क्या इसमें टेस्ट करवाए? Ma'am, no, my patient having discharge for I sent her Hive journal swab for culture and sensitive for culture and sensitivity, cytology, and gram stain. अच्छा. And I. But what is your diagnosis? Yani on naked eye examination, what do you think may be the probable reason for this discharge? या इसके किस टाइप का आपको डिस्चार्ज लग रहा है? Can you make out के इसमें what is the type of discharge and what can be probably a pathology? Ma'am, the discharge is yellowish in color, copious in amount, and thin in consistency. Out of all reasons, क्या ज्यादा probability आपको लगती है इस टाइप के discharge? Ma'am, it may be most probably bacterial vaginosis. Bacterial vaginosis का discharge ऐसा होता है? Ma'am, because it is not associated with any itching, and that is mostly in trichomonas, and it is not cardioid, that is in candidiasis, and it is not mucopurulent discharge, that is in gonorrhea, and having no cervical and any vaginal involvement. So ma'am, most probably this is bacterial, and it will be confirmed after report of the Hive journal swab. Okay, that definitely will be confirmed, but you have to देखो जो आज दफा आप पेशेंट्स को जब ओपीडी में देख रहे होते हो, sometimes you are not able to take this Hive journal swab. आप तो ले सकते हैं, लेकिन पेशेंट जो है वो उसको आगे प्रोसीड नहीं करता. When it is sent to lab, patient never come back to you. और उसमें ये तो खैर एक कॉम्प्लेक्स केस है जिसमें और भी पैथोलॉजीज हैं, बट कंसीडरिंग द पेशेंट हैज ओनली द प्रॉब्लम ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज. सो यू मस्ट it may be mixed bacterial discharge, most probably. Sorry ma'am, you cannot say कि mixed bacterial नहीं है, and most of the time it's mixed type. Yes ma'am, इसमें ज्यादातर mixed type ही होता है, because mixed bacterial is associated with this tenderness, और ये सारा जो आप बता रहे हो उसमें ज्यादा probability उसी की बन जाती है.
जी मैम, तो सॉरी मैम, मैं उसको नेकेड एग्जामिनेशन कंफ्यूज कर गई थी। जी मैम, उसमें मिल्की वाइट होता है बैक्टीरियल टाइप ऑफ वेजिनस। डिस्चार्ज जो है वो आपको आना चाहिए। एनीवे नाउ एचवीएस इसके अलावा और किसी टेस्ट की जरूरत है या नहीं है? मैम बेटा एक मिनट जरा मैं एक फोन कॉल सुन लूं। जी मैम। जी, तो हम टेस्ट की बात कर रहे थे। एचवीएस आपने जी मैम। भिजवा दिया, व्हाट एल्स इज नीडेड? मैम मोस्टली वी आर डूइंग hive channel swab for parvaginal discharge, but in PID the common organism is gonorrhea and Mycobacterium tetragonous. For that we doing before previously we doing a triple swab test. For that from one swab from endocervix for culture and sensitivity, and one swab from urethral, that is for gram staining for gonorrhea, and one swab from rectum, that is also for culture and sensitivity. And nowadays after rectal swab ma'am, एक मिनट, and आपने क्या sorry बताया? sorry anal swab ma'am, anal swab, एनल urethral swab, anal, एनल and स्वैब आप क्यों भेजोगे? ma'am, previously nowadays we after the availability of the net, nowadays we are not doing these three tests. We are doing vulvovaginal swab. बट फॉर व्हाट बैक्टीरिया, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि फॉर व्हाट आप ये सारे जो टेस्ट करवा रहे हो टू आइसोलेट व्हाट ऑर्गेनिज्म? Ma'am, urethral swab for gonorrhea and endocervical swab for chlamydia. अच्छा, ठीक है। और should we wait for the report of HVS to proceed on to these tests? No, ma'am. I will start empirical treatment of PID to my patient for 14 days. And नहीं, मेरा सवाल ये है आपसे कि ये जो आप नेट टेस्ट बता रही हैं, बाकी यूरिथ्रल स्वैब एंड एंडो एनल स्वैब, ये सारे हम अभी प्रोसीड करेंगे और या फिर हम एचवीएस की रिपोर्ट का इंतजार करेंगे? ma'am, first of all, I will send her HVS and I will treat my patient. If the symptoms of my patient improved and the symptoms was improved and she feeling free from symptoms, so then I will not go for this test. So Vulvovaginal swab. this may be okay according to the evidence-based practice, but practically speaking, you send the HVS and you start the treatment. ठीक है? Yes, ma'am. और उसमें जो आपने क्लैमिडिया, गोनोरिया का सारों की टेस्टिंग बताई है, हम एम्पिरिकल Yes. ट्रीटमेंट में उनको वो हमारे जहन में होता है, द Yes, ma'am. ट्रीटमेंट ऑल दिस ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब मुझे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट बता दीजिए, फिर हम मैनेजमेंट को डिस्कस करते हैं। Ma'am, on ultrasound, there is a complex cyst in right adnexia, and there पहले is यूट्रस का बता दें। mild. जी मैम। जी, पहले यूट्रस का जरा स्टेटस बता दें अल्ट्रासाउंड पे। Ma'am, uterus was in normal size. On ultrasound, there is no and endometrial thickness is normal, and there is no biometal echogenicity, and uterus is of 8-week size. And in adnexia, there is a complex adnexial right adnexial cyst that is 5.5 into 5 centimeter, and there is mild fluid in pouch of Douglas. this is complex cyst.
Yes, ma'am. And there is fluid in the pouch of Douglas. Yes, Okay. ma'am. Now, what is your diagnosis after completing all these investigations? HVS की रिपोर्ट जो है दैट इज अवेटेड, अभी आई, ठीक है, बाकी सारी रिपोर्ट्स आपके पास हैं. Ma'am, my first terminal diagnosis is PID with TOMAS. ठीक है. और Ma'am, second one is endometriosis with endometrioma. And ma'am, my patient menstrual cycle was regular. That is on 25th September. That is on 20 September 2021. And according to her history and menstrual cycle, I rule out, and she is also not having any history of nausea, vomiting. That's why pregnancy, ectopic pregnancy, I rule out. she had tubal ligation. Yes, ma'am. Also. फिर भी Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर भी. अच्छा, ठीक है. अब Ma'am, इसमें there may be failure of tubal ligation. 1% chance of failure of tubal ligation. Okay, So वो that's why I rule out ectopic pregnancy. लीस्ट लाइकली डायग्नोसिस वो इसलिए हो जाएगा कि जो बाकी हिस्ट्री है वो ज्यादा आपकी जिसको सजेस्ट, क्योंकि बाय द एंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन यू Yes, ma'am. मस्ट बी एबल टू, क्योंकि आपने इन्वेस्टिगेशन में प्रेगनेंसी टेस्ट का कहीं जिक्र नहीं किया, लेकिन अब Yes, ma'am. आपका डिफरेंशियल है आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, उसमें आपने एक टॉपिक को शामिल कर लिया. हालांकि No, ma'am. I have rule out already. That's why I did not ओके, बट यू डिड नॉट मेंशन द टेस्ट. Yes, ma'am. I did not. प्रेगनेंसी. And that's why I did not mention ectopic pregnancy in my differential. My differential is only PID, endometriosis, and adenomyosis. ओके. अब इसमें ये जो दो डायग्नोसिस हैं, इसमें अब इसमें खास तौर पे जो उसकी हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन के बाद है, यू मस्ट बी एबल टू मेक आउट दैट व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस, क्योंकि ये पेशेंट को हिस्ट्री है 4 मंथ से. अगरचे हमें ये नहीं पता कि 4 मंथ से पहले ऐसा क्या इवेंट हुआ कि शी सडनली स्टार्टेड हैविंग येलोइश डिस्चार्ज एंड लोअर एब्डोमिनल पेन. ठीक है, वो वाली हिस्ट्री जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. क्या कोई सर्जिकल इंटरवेंशन हुई और शी हैड सम अदर थिंग, या फिर जो है इसमें बाद दफा इडियोपैथिक भी हो सकता है, एंड स्पेशली व्हेन द हस्बैंड इज लिविंग आउटसाइड द सिटी. तो ये सारी चीजें हो सकती हैं, बट टीओएमएस इसमें ज्यादा प्रोबेबल डायग्नोसिस इसका बनेगा इन व्यू ऑफ Yes, sir. और एग्जामिनेशन फाइंडिंग जो है. ठीक है. Yes, sir. एंडोमेट्रियोसिस जरा इसका थोड़ा सा लेस लाइकली है कि एंडोमेट्रियोसिस इतना जल्दी 4 महीने की हिस्ट्री के साथ नहीं होता, और Yes, बाकी ma'am. जो इसकी हिस्ट्री है दैट इज नॉट वेरी मच सजेस्टिव ऑफ एंडोमेट्रियोसिस. Yes, ma'am. Least like. को जो है वो अपना डायग्नोसिस लिमिट करना पड़ेगा probably to TOMAS and PID, and as a result is TOMAS. Can TOMAS Yes, as a result of PID be unilateral? Yes, PID ma'am. that It may be. Yes, ma'am. It may be. It may be, but most probably it is bilateral. It may be unilateral. Now you have a TOMAS apparently जो हमने अभी तक डायग्नोसिस बनाया है उसमें 5.5 into 5 centimeter का कॉम्प्लेक्स है fluid in pouch of Douglas. What is your management strategy now? Ma'am, first of all, I will consult. Ma'am, first of all, I will consult the couple regarding the diagnosis. Most probably, she having pelvic inflammatory disease with mass in her tubo ovarian mass in her right adnexia. I will consult the couple. I will refer her husband to genitourinary medicine clinic. But in my country, there is no genitourinary medicine clinic. I will treat her husband empirically. कैसे? I will. Ma'am, I will give a tablet azithromycin, 2 tablet parorostat, or a tablet nindazole, 2 tablet parorostat. Ma'am, I will ask the couple to avoid sexual intercourse during treatment and or otherwise use barrier method. I will admit my patient
And I will treat with IV antibiotics in the form of injection of fluoxetine 400 milligram IV twice a day, and I injection metronidazole 500 milligram thrice a day for first 48 hours. And I will see the improvement in the symptoms. If the symptoms of the patients improve, then I will shift my patient on oral medication, the tablet of fluoxetine 400 milligram for 14 days, and tablet metronidazole 400 milligram per oral for 14 days. And I will discharge my patient, and I will counsel my patient to take a good diet and maintain her hygiene, and avoid sexual intercourse during treatment, and otherwise use a barrier method, and come for follow up after 14 days with the report of hygienal swab. अच्छा, अब इसमें सिम्टम सपोज उसके इम्प्रूव कर गए और आपने उसको ओरल मेडिसिन पे डाल दिया, HBS की रिपोर्ट भी आ गई और आपने उसके अकॉर्डिंगली ही मेडिसिन उसको दे दी है अकॉर्डिंग टू द कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट. नाउ व्हाट विल बी अदरवाइज द फॉलो अप? इसमें बाकी और फॉलो अप आप क्या करोगे इन द केस पेशेंट इज इम्प्रूव्ड क्लिनिकली? मैम समझ नहीं आई क्या पूछना चाह रही हैं. देखो, इस पेशेंट में पीआईडी के सिम्टम्स थे, आपने उसको एडमिट किया. आई एग्री विद आईवी एंटीबायोटिक्स बिकॉज शी नीडेड इट. फीवर भी है और उसको जनरलाइज्ड सारी टेंडरनेस भी है. पेशेंट के सिम्टम्स इंप्रूव कर दिया, आपने ओरल मेडिसिन पे उसको घर भेज दिया. अब बाकी पार्टनर ट्रीटमेंट और उसको जो बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं वो आपने एडवाइस कर दिए. Now, is there any other important thing to be followed for? Yes, ma'am. Ma'am, when patient will come for follow-up, I ask about, I will do her examination, and I will see lower abdomen tenderness, and I will do her speculum examination for discharge, or I will ask for patient also, and I will inquire about fever and pain, and I will also do her ultrasonography for the regression of the size of the TO mass. After how much time? From the time of initiation of therapy. यानी आप से लेके कितने अरसे बाद आप इसका ये फॉलो करोगे, इसका जो अल्ट्रासाउंड है उसको फॉलो अप स्कैन कब करवाओगे? Ma'am, as my patient has improvement in her symptoms after 48 hours of IV antibiotics, and that's why I sent to her home with the 14 days medicine. I will follow up with after 14 days. अच्छा, 14 डेज के बाद आप इसका फॉलो अप स्कैन कराओगे? यस मैम. सही है. अच्छा, okay, I agree, because if you are considering it to be a TO mass due to infection, it has to be followed early. इसमें ये कोई रूटीन की ओवेरियन सिस्ट नहीं है कि जिसमें आप महीनों या हफ्तों के हिसाब से इंतजार करोगे. But after the completion of this injectable and oral antibiotic therapy, you have to follow and you have to assess the size of that TO mass as well. Suppose जब आप इसका 14 weeks के बाद स्कैन करवाते हो तो उसका साइज उतने का उतना ही, अब क्या करोगे? And patient is tender to touch, though otherwise she doesn't have any symptoms. यानी उसको फीवर नहीं है, अब उसका डिस्चार्ज काफी हद तक सेटल हो गया, तो उसको फिर आप कैसे इसको अब क्या करोगे, इसकी मैनेजमेंट कैसे करोगे? इन द केस दिस TO mass persist. Yes, ma'am. Ma'am, after completion of the treatment and after treatment of the discharge, I will counsel my patient for the laparoscopic surgery. I will go for laparoscopic surgery for the it may be diagnostic and it may be therapeutic. I will counsel the couple about the laparoscopic surgery. Then I will admit my patient and I will do her I will re-evaluate my patient investigation, and I will take her anesthesia fitness, and I will
improve her. I will take her anesthesia fitness. I will keep her on elective list. I will NPO the patient from midnight, and I will keep her first on list. I will shift the patient to the OT, and after that I will do her laparoscopic surgery for the diagnostic and therapeutic purpose. और ओके देखो आपने लेप्रोस्कोपी का ठीक है कह दिया, जो डायग्नोस्टिक थेराप्यूटिक पर्पसेस दोनों हैं. दिस सिस्ट वाज फाउंड टू बी कॉम्प्लेक्स सिस्ट ऑन अल्ट्रासाउंड. कॉम्प्लेक्स सिस्ट का डिफरेंशियल क्या क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सिस्ट है ना, दिस इज नॉट सिंपल सिस्ट. इट कैन बी अ टीओमास इटसेल्फ, जो एक एब्सेस बना हुआ हो. इट कैन बी एंडोमेट्रोटिक सिस्ट. इट कैन बी सम कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट एज इट इज, एंड इन द प्रेजेंट सिचुएशन इट अपीयर्ड मोर लाइकली टू बी अ ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस या मैस अदरवाइज. ठीक है, yes ma'am, हमने फॉलो किया. स्टिल दैट कॉम्प्लेक्स सिस्ट ऑफ द सेम साइज परसिस्ट्स. ठीक है, अब उस कॉम्प्लेक्स सिस्ट के साथ चूंकि उसके हमने इसको कोरिलेट करना है विद द क्लिनिकल सिचुएशन, तो इसमें लेप्रोस्कोपी जो है वो दैट इज जस्टिफाइबल बिकॉज इवन इफ इट इज एन एब्सेस, क्योंकि एब्सेस की मौजूदगी में दैट नीड्स द ड्रेनेज. अगर ये एंडोमेट्रोसिस भी परसिस्ट कर सकता है और एब्सेस भी परसिस्ट कर सकता है, उसके लिए ड्रेनेज की जरूरत पड़ती है. अगर जो उसमें सिम्टम्स बाज दफा पूरी तरह रिजॉल्व नहीं हुए थे, बट हाई डोज एंटीबायोटिक्स कैन सबसाइड द सिम्टम्स, कैन सप्रेस द सिम्टम्स फॉर सम टाइम्स. तो उस सूरत में इसमें लेप्रोस्कोपी इज जस्टिफाइबल, क्योंकि उसमें आप डायग्नोसिस भी करोगे और उसमें क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट है और वो भी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका साइज भी इसका देखो तकरीबन इतना बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है एज कंसिडर्ड फॉर हर एज, क्योंकि रिप्रोडक्टिव ईयर्स ऑफ एज में तो ये कॉमनली होता है ऐसा. इस वजह से ट्यूमर मार्कर एट द फर्स्ट इंस्टेंस विल नॉट बी जस्टिफाइबल. ठीक है, दिस yes ma'am. Tumor markers in the present situation are assumed to be raised because of the infection. Pelvic infection. मैडम ये जो भी आपने बोला है इसे काइंडली रिपीट कर दीजिएगा, तो आवाज ठीक नहीं आ रही थी. ट्यूमर मार्कर से पहले वाली बात मैं ये बता रही हूँ कि ये जो सिस्ट थी ये कॉम्प्लेक्स, मतलब जो मैक्सल मैस है दैट वाज कंसीडर्ड टू बी कॉम्प्लेक्स मैस एज असेस्ड ऑन अल्ट्रासाउंड. अब कॉम्प्लेक्स मैसेज का आगे से अगर आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाओ तो इसमें टीओमैस या टीओ एब्सेस बनेगा, एंडोमेट्रोसिस बनेगा, या फिर कोई भी हेमरेजिक सिस्ट. एंडोमेट्रोसिस के साथ हेमरेजिक सिस्ट भी हो सकती है. और इसके अलावा आखिर में जो लीस्ट विल बी द कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट, जो इस एज के हिसाब से लेस लाइकली है. और वैसे भी उसकी जो अगर क्लिनिकली हम कोरिलेट करें तो दैट अपीयर्स टू बी मोर ऑफ द ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस या मैस. तो इसमें लेप्रोस्कोपी हमने करनी है, लेकिन अब इसको ये सोचते हुए कि ये कॉम्प्लेक्स ओवेरियन मैस है ऑफ 5 into 5.5 सेंटीमीटर साइज, तो उसमें ट्यूमर मार्कर्स हम पहले ही स्टेप पे इसमें एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि इसमें जो कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट या मेलिग्नेंसी वाली चीज है वो लेस लाइकली होगी. और CA 1 to 5 की सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी एट दिस एज एंड विद द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ द पेशेंट, जिसमें वो PID के साथ प्रेजेंट की, विल बी रिड्यूस्ड मोर. यानी इन्फेक्शन की मौजूदगी में उसकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी और भी कम हो जाएगी. एंड इफ गोइंग फॉर अदर ट्यूमर मार्कर्स तो वो वैसे भी जस्टिफाइबल नहीं है, क्योंकि इसमें कोई जर्म सेल ट्यूमर्स वाली जो है वो लीस्ट लाइकली इसका डायग्नोसिस होगा. अब इसमें हम ट्यूमर मार्कर्स कराते क्यों हैं? बेसिकली हमें उसका ऑब्जेक्टिव भी पता होना चाहिए कि ट्यूमर मार्कर्स हम अमूमन करवाते हैं प्री ऑपरेटिव असेसमेंट और प्री ऑपरेटिव एनालिसिस ऑफ द ट्यूमर टाइप. यानी हमने उस सिस्ट के हिसाब से को देखना होता है कि ये कहीं मेलिग्नेंट तो नहीं है. तो इस प्रेजेंट सिनेरियो में उसका मेलिग्नेंट ओवेरियन सिस्ट का होना एक बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है. तो इसलिए इसमें ट्यूमर मार्कर जस्टिफाइबल नहीं होंगे. अगर एंडोमेट्रोसिस है तो भी, और अगर ये टीओमैस है तो भी. हाउएवर
if very rarely if we find it to be a case of complex ovarian cyst, तो भी साइज उसका इतना बहुत ज्यादा एप्रिशिएबल, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है एज इज इंडिकेटेड फॉर द मेलिग्नेंट ओवेरियन सिस्ट, और उस सूरत में भी हम इसको बाद में ऑनवर्ड जो है वो इसके फॉलोअप के लिए ट्यूमर मार्कर्स करवा सकते हैं। तो इसलिए इसमें ट्यूमर मार्कर्स का एट द फर्स्ट इंस्टेंस हम इसको नहीं करेंगे। अलबत्ता लेप्रोस्कोपी हम बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जहन में ये इसका डायग्नोसिस है कि प्रोबेबली ये ट्यूबोवेरियन एब्सेस है, जो कि उससे, क्योंकि जहां भी एब्सेस होगा उसको ड्रेन करना पड़ता है, वो अमूमन एंटीबायोटिक के साथ सेटल नहीं होता अनलेस ऑफ वेरी स्मॉल साइज, तो इसलिए उसको हमें ड्रेन करना पड़ेगा। तो लेप्रोस्कोपी प्रेफरेबली इफ अवेलेबल एंड एक्सपर्टीज आर अवेलेबल, या फिर लेप्रोटमी इफ लेप्रोस्कोपी इज नॉट अवेलेबल। तो उसके हिसाब से हमारा बाकी जो डायग्नोसिस होगा या बाकी जो ट्रीटमेंट होगी वो उसके हिसाब से फिर चलेगी। बिकॉज इन केस इट टर्न्स आउट टू बी एन ओवेरियन ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस, तो हमने उसको ड्रेन करना है, उसकी जो एब्सेस की वॉल है उसको निकालना है। और अगर ये एंडोमेट्रोमा आ जाता है तो एंडोमेट्रोमा को भी हमने यही करना होता है, सिस्ट वॉल इनक्लीशन एंड द ड्रेनेज तो नहीं, उसमें पूरी सिस्ट वॉल ही निकलती है। तो इस तरह, और यही दो चीजें हम लेप्रोटमी में भी करेंगे अगर हमें लेप्रोटमी करने की जरूरत पड़े, केस लेप्रोस्कोपिक फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल। तो इस तरह से आपने इसको लेके चलना है। नाउ कमिंग टू द सेकंड सिनेरियो कि पेशेंट को आपने एडमिट किया है और उसके अलावा उसको हैवी एंटीबायोटिक्स दी हैं बट स्टिल द पेशेंट इज नॉट इम्प्रूव्ड, तो उस सूरत में आप क्या करोगे? Ma'am, my patient is not improving clinically after antibiotics. ये क्लिनिकली उसका फीवर भी सेटल नहीं हो रहा और उसकी टेंडरनेस भी सेटल नहीं हो रही। If my patient is not improving after IV antibiotics within 48 hours, then I will also discuss the scenario with the patient and couple, and she is not improving with the IV antibiotics. There may be more abscess formation in the pelvis. Then I will counsel the couple for surgery. It may be laparoscopically or it may be exploratory in the form of exploratory laparoscopy. Basically इसमें and I will go for drainage of the abscess. ठीक है, इसमें बेसिकली हमने यही करना होता है। तो क्योंकि अगर ये सेटल ना हो सिम्टम्स तो फिर आप सर्जरी की तरफ पहले चले जाते हैं, क्योंकि विद स्टार्ट और जो एक्यूट कंडीशंस होती हैं उसमें तो आप 6 आवर्स की भी एक बोलस एंटीबायोटिक्स देके देन यू कैन प्रोसीड फॉर हिस्टेक्टमी, जैसे सेप्टिक एबॉर्शन के केसेस होते हैं या और इस तरह के जिसमें एक्यूट सेप्सिस में पेशेंट होता है। बट इन दिस केस एज द पेशेंट इज नॉट इन एक्यूट कंडीशन, so we can wait for 48 hours and then we can proceed for surgery if the patient's condition is not stabilized. I mean, if there is no clinical improvement in the patient's condition. तो इसमें यही होगा कि फिर उस एब्सेस को हमें ड्रेन करना पड़ेगा। ठीक है? यस मैम, मेरे पेशेंट मैम मेरे पेशेंट के ट्यूमर मार्कर सारे हुए थे, वो नॉर्मल थे। मैंने इसलिए नहीं इनका जिक्र किया क्योंकि उसका साइज कम था, उसका डॉपलर फ्लो नहीं था, वो यूनिलेटरल था और उसमें कोई एसाइटिस वगैरह प्रेजेंट नहीं था और ये बी रूल में फॉल कर रहा था। बेसिकली इसमें ट्यूमर मार्कर्स की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि ट्यूमर मार्कर्स अगर हम करवाते हैं, वैसे मुझे हैरत है कि CA-125 भी नॉर्मल आ गया, वो तो इसमें रेज हो सकता था इन इन्फेक्शन। और इन्फेक्शंस में हम जो बात करते हैं ना कि ये लेस देन 200 होंगे तो और भी पैथोलॉजी हो सकती है। ये बाज दफा ग्रेड 4 एंडोमेट्रोसिस में और एक्यूट सेप्सिस में, एक्यूट पेरिटोनाइटिस में, इस तरह की कंडीशंस में कैन गो फॉर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स, और बाज दफा ये थाउजेंड्स तक भी चले जाते हैं CA-125, व्हिच कैन बी रॉन्गली मिसइंटरप्रेटेड एज बीइंग ड्यू टू कार्सिनोमा। तो इसमें बेसिकली जरूरत ही नहीं थी। तो अगर आपने ये करवाई भी होंगे तो जाहिर है फिर उसकी वजह भी बतानी पड़ेगी कि आपको कहाँ से लग रहा है कि ये मैलिग्नेंसी है। हमारा मकसद तो यही होता है। मैम दैट्स व्हाई आई डिड नॉट आस्क। नहीं, यू आर वाइज इनफ कि आपने इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन बहरहाल एनीवे। तो अब इसको हम, मेरा ख्याल है ये वाली सारी मैनेजमेंट तो इसकी एक्यूट कंडीशन की तो हो गई। ठीक है,
तो इसमें अब मजीद तो इसमें कोई और फॉलो अप की तो जरूरत इसमें नहीं है, लेकिन इसमें जो बाद में इसकी जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, व्हाट एल्स यू विल एजुकेट हर। अब इस पेशेंट में शी हैड एन एपिसोड ऑफ पीआईडी और जिसके लिए उसको सर्जरी भी करवानी पड़ी। हम इसको सर्जरी की तरफ ही लेके जा रहे हैं कि सर्जरी करके एब्सेस भी ट्रेन करना पड़ा। तो इसके बाद आप इसको क्या एडवाइस करो? मैम अगर ये स्कैन पे कम्प्लेक्स के साथ मल्टीलोकुलेटेड या सेप्टेशन आता तो अब हम ट्यूमर मार्कर पे जाते। देखो इसमें मल्टी लोकुलेटेड और जो कॉम्प्लेक्स होता है ना, कॉम्प्लेक्स हम किसको कहते हैं? कॉम्प्लेक्स में डिफरेंट जो अल्ट्रासाउंड पैरामीटर्स हैं वो भी, लेकिन बाद दफा अगर ब्लड है, थिक पस है, तो भी वो हमें कॉम्प्लेक्स सिस्ट की तरह से ही नजर आती है, क्योंकि उसकी एकोजेनिसिटी फर्क हो रही है फ्रॉम दैट ऑफ अ सिंपल ओवेरियन सिस्ट जिसमें सिंपल सीरस फ्लूइड हो सकता है। तो इस वजह से उसमें अपार्ट फ्रॉम लोकुलाई, और क्योंकि अगर ये मल्टी लोकुलेटेड होता और इसमें जो है वो अगर कोई सॉलिड स्ट्रक्चर होता तो फिर उसमें वजह किसी हद तक बन सकती है, लेकिन जहाँ पे सिर्फ कॉम्प्लेक्स है उसमें और किसी पैरामीटर पे पॉइंट आउट नहीं किया गया, यानी और उसमें कोई उस पे अल्ट्रासाउंड पैरामीटर उन्होंने डिफाइन नहीं किया, जस्ट गिविंग द इंफॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट, तो सूरत में किसी हद तक आप जस्टिफाइबल, क्योंकि टू मॉर्बिडिटीज कैन बी कंबाइंड। हम ये तो नहीं कह सकते कि यो ऐसी हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। हम जो सिर्फ एक जो ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि डिफरेंट फीचर्स को कंबाइन करके एक पिक्चर बना रहे होते हैं पेशेंट की, जिसमें सारी चीजें फिट इन हो जाती हैं, इन्वेस्टिगेशन वाली चीजें भी, जो इसके एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स है वो भी, हिस्ट्री के पॉइंट्स हैं वो भी, ये सारी चीजें जिस चीज में फिट हों वो एक क्लिनिकल पिक्चर उसकी बन जाती है पेशेंट की। तो बाद स्कैन पे जाके पिक्चर में फिट नहीं हो रही है जी। अगर मल्टीलोकुलेटेड है, मल्टीलोकुलेटेड भी है, मल्टी सेप्टेशन भी है, तो मैम फिर ये दो स्कोर इसको हम 1 करेंगे या 3 को, और ये ऑलवेज ये कम्प्लेक्स होगी, मतलब जो हम नॉर्मली लेते हैं उसमें तो है ना कि मैक्स आ जाए, मल्टीलोकुलर आ जाए, सॉलिड आ जाए, एसाइटिस आ जाए और बायलैटरल, इन 5 के अलावा इन 2 का सिनेरियो है कि ये मल्टीलोकुलर और मल्टी सेप्टेशन दोनों आ जाए। ठीक है, तो इसमें मल्टीलोकुलेटेड और मल्टी सेप्टेट में फर्क क्या होता है वैसे? जरा आप ही में लोकुलाई और सेप्टस में क्या फर्क होता है? मैम सेम ही है, लोकुलाई मीन डी सेप्टेशन। ये दो पैरामीटर कैसे हो गए? सेम ही बात है, सेप्टेशन एक ही बात है मैम, लेकिन इसको मतलब मेरा पूछने का मतलब ये था कि क्या है जो स्कैन रिपोर्ट आती है तो मैम सेप्टेशन ऑलवेज कॉम्प्लेक्स का ही फीचर है? नहीं, सेपरेशन बाद दफा अगर ये दो सेप्टर्स हैं, ये दो लोकुलाई, देखो इसका हम इसको बाद दफा हम मल्टी लोकुलेटेड सिस्ट को या मल्टी सेप्टेटेड सिस्ट को रॉन्गली इंटरप्रेट करते हैं सिर्फ इस एक फाइंडिंग के ऊपर। आपने ये देखना है कि सेप्टस की वॉल थिकनेस कितनी है, सिस्ट वॉल की थिकनेस कितनी है, उसमें कोई सॉलिड स्ट्रक्चर है या नहीं है, उसका ओवरऑल साइज कितना है या कितना नहीं है। अब अगर ये जो हाइपर स्टिमुलेटेड ओवरीज होती हैं जिसमें ये बाद दफा कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट भी इवन उनमें भी 2 से ज्यादा लोकुलाई होते हैं, तो सिर्फ आप उसी बेस पे तो उसको वो नहीं करते कि ये कोई बॉर्डर लाइन या कोई मैलिग्नेंट सिस्ट है, और ना ही स्ट्रेट फॉरवर्ड उस पर आप ट्यूमर मार्कर का वो आप ऑर्डर करते हो। इट अगेन डिपेंड्स कि उसमें जो लोकुलाई और सेप्टा की कंडीशन क्या है, उसमें कोई और कोई एग्जिस्टेंट फीचर है या नहीं है, ओवरऑल साइज ऑफ द सिस्ट क्या है। तो ओवरऑल साइज ऑफ द सिस्ट एट दिस एज 35 ईयर्स, क्योंकि उसमें फिर आपने डिफरेंट और भी चीजें कंबाइन करनी है, क्योंकि इस रिप्रोडक्टिव एज टाइम पीरियड पे बाद दफा ये मल्टी लोकुलेटेड सिंपल सिस्ट बनती हैं और खत्म हो जाती हैं। यही वजह है कि इसमें जो अल्ट्रासाउंड मार्कर्स हैं that has to be very much specific as compared to in those patients who are postmenopausal, उनमें ये ओवुलेशन और ये सारा वो चक्कर नहीं चल रहा होता, तो इस वजह से उसमें फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट की डेफिनेशन एज इट इज स्टैंड नहीं करती। वहां पे जो ओवरऑल साइज ऑफ द सिस्ट है जो कि क्लिनिकली सिग्निफिकेंट होता है वो भी फर्क हो जाता है, वहां पे अल्ट्रासाउंड मार्कर की भी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस फर्क हो जाती है। सो in the reproductive age period,
यानी जो प्री मेनोपॉजल एज पीरियड है, मोर सो अंडर 40 इयर्स ऑफ एज, ये वाली चीजें होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। और मल्टीलोक्युलेटेड मोस्ट ऑफ द टाइम आर सिंपल, अगर उसमें सिस्ट वॉल थिकनेस ज्यादा नहीं है, अगर सेप्टा वॉल थिकनेस ज्यादा नहीं है, और अगर उसके अंदर कोई और फीचर नहीं है, और अगर उसका ओवरऑल साइज जो है वो कम है, और इस साइज को हम अमूमन जो है वो 5-6 सेंटीमीटर के तौर पे लेते हैं। तो ये सारी चीजें एक एब्सोल्यूट चीज कोई नहीं होती। आपने एक जो चीज है, जो आपको नॉलेज बेस्ड पता है कि ये चीज है जो मैंने मेलिग्नेंसी स्टेटस को देखना है, मेलिग्नेंसी की स्कोरिंग करनी है, वो इस एज पे कितनी एप्लीकेबल है और पेशेंट का सिनेरियो क्या है, आप उसके हिसाब से उसको इंटरप्रेट करोगे। दैट इज व्हाट इज योर क्लिनिकल कॉम्पिटेंस एंड स्किल। क्योंकि नॉलेज को पेशेंट के ऊपर, एक पर्टिकुलर पेशेंट के ऊपर अप्लाई करना, ये एक बहुत बड़ा आर्ट होता है। पेशेंट ए पे वो चीज फर्क होगी, पेशेंट बी में फर्क होगी, पेशेंट सी में फर्क होगी। तो इसलिए हो सकता है पेशेंट ए में आपको ट्यूमर मार्कर्स करने पड़े ऑफ द सेम एज, लेकिन उसी दूसरे पेशेंट पे हमें उसकी कोई जरूरत महसूस ना हो। ठीक है मैम, अगर एग्जामिनर कंडीशन पुट कर दे कि यू फाउंड मेलिग्नेंसी ऑन द लेप्रोस्कोपी, देन व्हाट विल यू डू? तो मैम उस केस में हम क्या करेंगे फिर? देखो, अगर मेलिग्नेंसी आ जाती है, जो मेलिग्नेंसी वाला सिनेरियो नहीं बनता, तो अगर लेप्रोस्कोपी पे हमें मेलिग्नेंसी मिल जाती है, अपीयरेंटली मेलिग्नेंसी, यू विल अबैंडन योर प्रोसीजर बिकॉज दिस इज डायग्नोस्टिक। हमने उसको निकालने तो नहीं बैठ जाना, हम उसको निकालेंगे विद प्रॉपर वर्कअप, और उसके बाद उसका प्रॉपर वर्कअप करने के बाद और प्रॉपर प्रेपरेशन के साथ और उस प्रोटोकॉल के साथ जो मेलिग्नेंट ओवेरियन सिस्ट की सर्जरी के साथ जो है लिंक्ड है। तो ये नहीं कि आपने अगर लेप्रोस्कोप अंदर डाल लिया तो आप कुछ करके ही निकलोगे, बिकॉज योर मेन पर्पस इज टू डायग्नोस व्हाट टाइप ऑफ सिस्ट इट इज। और क्योंकि आपने किसी चीज को मैनिपुलेट तो नहीं किया, तो इसलिए आप इसको सिर्फ डायग्नोस्टिक करके छोड़ दोगे और उसके बाद आप प्रोसीड करोगे फुल प्रिपरेशन। जी मैम। मैम इसमें बायोप्सी ले लें जब हम लेप्रोस्कोपी करेंगे। हम पहले जरा जेब से पूछ लें कि इनका कोई और क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन बहरहाल जेब ने अच्छा केस प्रेजेंट किया था, थैंक यू मैम, सारी चीजों की। तो बेटा आपका कोई क्वेश्चन? मैम ये जो कह रही है मेलिग्नेंसी हमें अपेरेंटली नजर आ जाती है लेप्रोस्कोप पे, तो हम उसकी बायोप्सी फिर उस वक्त ले लेंगे सिर्फ? नहीं, बायोप्सी आप पे क्यों लोगे? बायोप्सी लेने का ऑब्जेक्टिव क्या है? यू वांट कंजर्वेटिव सर्जरी? नो नो मैम, पेशेंट की तो नहीं हुई है। नहीं मैम, जो पेशेंट, देखो बायोप्सी हम 2-3 केसेस में लेते हैं। एक तो ये कि आपने कंजर्वेटिव सर्जरी करनी है एंड यू नीड टू नो व्हाट इज द मेलिग्नेंसी पोटेंशियल। बाद दफा पेरेंटली बहुत उस तरह की वो नजर आती है हमें सिस्ट के ये मेलिग्नेंट ही होगी, लेकिन एक्चुअली होती नहीं है। ऑन हिस्टोपैथोलॉजी टर्न्स आउट टू बी डिफरेंट। और ऐसा हम, जैसे हम फ्रोजन सेक्शन की बात करते हैं, ऐसा हम उस वक्त करते हैं कंजर्वेटिव सर्जरी से रिलेटेड जब हमें पता हो कि हमने इसमें ओवेरियन इसमें हमने कंजर्वेटिव सर्जरी करनी है, यानी फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरी करनी है। तो दूसरी चीज ये होती है कि इसमें अगर आपने एक तो फर्टिलिटी स्पेयरिंग वाली चीज होगी, या फिर उस सूरत में जब बहुत एडवांस्ड मेलिग्नेंसी हो और आप चाहते हैं कि पहले इसको कीमोथेरेपी दे के फिर हम प्रोसीड करें, तो उसमें बायोप्सी का रोल होता है। अदरवाइज और इसमें हो सकता है रोल। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर ये लड़की कह रही थी ना कि अगर लेप्रोस्कोपी हम डाल के लेप्रोस्कोप खड़े हैं और वहां पर हमें मेलिग्नेंसी मिल जाती है, तो मैम उस वक्त अगर हमें मेलिग्नेंसी मिल जाती है तो फिर हम उसकी बायोप्सी ले सकते हैं हिस्टोपैथ के लिए? देखो, बायोप्सी आप ले तो सकते हो, लेकिन आपको उसका लॉजिक तो बताना पड़ेगा ना कि आप हिस्टोपैथ के लिए ले रहे हैं, आप बायोप्सी किस मकसद के लिए ले रहे हैं। अलबत्ता ये आप लॉजिक दे सकते हैं कि अपीयरेंटली इट लुक्स लाइक अ मैलिग्नेंट ट्यूमर। यस मैम, आई विल टेक बायोप्सी टू कंफर्म दिस डायग्नोसिस। Yes ma'am, yes ma'am. After confirmation of the diagnosis, because no other parameter can confirm the diagnosis. अल्ट्रासाउंड पैरामीटर पे भी आप कंफर्म नहीं कर सकते, ट्यूमर मार्कर पे भी आप कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि अगर अर्ली ट्यूमर है तो उसमें तो 50% केसेस में तो CA 1 to 5 नॉर्मल ही आएगा। तो चूंकि कोई भी और जो पैरामीटर हैं जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है वो डायग्नोसिस को कंफर्म नहीं कर सकती एक्सेप्ट फॉर द हिस्टोपैथी।
and histopathological confirmation of the malignancy will determine the next plan of management. Yes ma'am, thank you ma'am. सूरत में आप इसको फिर बायोप्सी लेके, आपने उसको सिस्ट को कुछ नहीं करना, सिर्फ आप बायोप्सी लेके तो आप उसमें से निकलाओ, ठीक है। और ये अगर कंफर्म हो जाता, हो सकता है वो बाकी बेसिकली वो नाम ही निकले जो हम सोच रहे हैं, तो फिर उसकी ट्रीटमेंट अलग तरीके से होगी। यस मैम, आपका काफी वैलिड क्वेश्चन है कि इसमें आप बायोप्सी ले भी सकते हो, ठीक है। यस मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। अच्छा चलिए, बस अब वन बाय वन हम क्वेश्चंस को डील कर लेते हैं। पहले इस केस से रिलेटेड मैडम एक बेटा, अगर बहुत सारे लोग एक वक्त में बोलोगे तो मुझे कुछ नहीं समझ आएगा। आप वन बाय वन क्वेश्चन पूछें। मैडम मेरा क्वेश्चन था कि जैसे इस पेशेंट में आउट ऑफ सिटी है इसका हस्बैंड, और पेशेंट यंग है, सेक्सुअली एक्टिव है, और मैडम इसको एबनॉर्मल विजाइनल डिस्चार्ज है जो कि कोपियस इन अमाउंट है फ्रॉम द लास्ट 3 to 4 months। तो मैडम इसमें हम डीडी में सर्वाइकल पैथोलॉजी रख सकते हैं? सर्वाइकल पैथोलॉजी जो है वो मतलब हो तो सकता है जब तक आपने एग्जामिनेशन नहीं ना किया हुआ, यानी जब तक आपका ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपने हिस्ट्री पे बनाना है, वहां तक आप रख सकते हो। क्योंकि देखो एज, जिस एज में से वो गुजर रही है वो सर्वाइकल पैथोलॉजी की एज हो सकती है, ठीक है। तो इस वजह से सर्वाइकल पैथोलॉजी यूजुअली इन्फेक्शन तो एक चीज है, अगर कि इसके सारा जो पेन और फीवर वाली चीजें हैं ये ज्यादा पीआईडी के फीचर में जाती हैं, लेकिन स्टिल आप सर्वाइकल पैथोलॉजी इन रिस्क फैक्टर्स के ऊपर आप कर सकते हो। जैसे मैडम माइक्रोस्कोपिक लाइक सिन हो सकता है, सिन 1 2, तो क्योंकि उसमें तो हमें ग्रॉसली तो कुछ नहीं नजर आएगा, वो तो माइक्रोस्कोपिक डायग्नोसिस है। कौन सा डायग्नोसिस दोबारा बताएं? मैडम मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर हम उसका पंचपात्रों करते हैं और उससे सर्विस हल्दी की नजर आती है, लाइक सिन 1 या 2 जो होते हैं वो तो हमारा माइक्रोस्कोपिक डायग्नोसिस होता है, उसमें ग्रॉसली तो सर्विक्स ही लगती है, तो मतलब मैडम उसमें हम देखो आपने सिर्फ ये देखना है कि ऑब्वियस लीजन है या नहीं है, ठीक है। ऑब्वियस लीजन अगर आपको नजर नहीं आती तो ये टाइम नहीं है उसके स्मेयर लेने का, ठीक है। और इसको क्योंकि जो इन्फेक्टिव डिस्चार्ज है इसका, विच अपीयर्स टू बी इन्फेक्टिव डिस्चार्ज, उसकी मौजूदगी में ये फॉल्स पॉजिटिव आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो इसलिए स्मेयर लेने का ये टाइम नहीं है। अगरचे एग्जाम में आप ले लेते हो सिर्फ ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि मैं इसको किस तरह से करूंगी, अदरवाइज आप ये बता देते हो कि इसमें इतने इन्फेक्शन में उसके लेने का फायदा कुछ नहीं है, एंड दैट हैज टू बी टेकन आफ्टर वंस द इन्फेक्शन इज डेल्ट विद। और ये अगर मैनेज हो जाता है तो फिर आप उसके बाद इसका स्मेयर लोगे। लेकिन ये है कि उसमें आपने अगर फर्ज किया आप उसको करना ही चाहते हो, उसकी सर्वाइकल एवेल्युएशन करना ही चाहते हैं, क्योंकि देखो जो एचपीवी टेस्टिंग है वो भी तो सर्वाइकल स्मेयर पे ही होगी, तो वो वंस द इन्फेक्शन इज सेटल्ड आपने उसी वक्त करना है। बट व्हाट यू कैन डू इज विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन में और जो मैलिग्नेंट सेल्स होते हैं उसमें थोड़ा सा फर्क हो जाता है। अगर क्योंकि इसमें मेटाप्लेजिया ज्यादा होने के चांसेस होती हैं इन्फेक्शंस में, और नियोप्लेजिया ज्यादा होने के चांसेस होते हैं मैलिग्नेंसी में। सो द थिंग्स आर डिफरेंट, मतलब वो उसका जो प्रोटीन कोएगुलेशन है वो फर्क हो जाएगी। तो ये वाली चीज है जो आप कर सकते हैं। बाकी स्मेयर, चाहे वो आपकी लिक्विड सेल साइटोलॉजी हो, चाहे वो रूटीन की स्लाइड वाली स्क्रीनिंग हो, वो सारी चीजें वंस द इन्फेक्शन इज सेटल्ड। इन्फेक्शन में थोड़ी सी हाइपरवेस्कुलरिटी भी हुई होती है, इसलिए कोल्पोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी इतना अभी जो है वो बहुत ज्यादा वो इंफॉर्मेटिव नहीं रहेगा। मैम लेप्रोस्कोपी से जो डॉक्टर ने बोला कि लेप्रोस्कोपी करेंगे, सस्पेक्टेड मैलिग्नेंसी लग रही है, क्या हम ओवरी की बायोप्सी लेंगे या पूरी ओवरी निकालेंगे? अगर बायोप्सी लेंगे मैलिग्नेंसी होगी तो अपग्रेड नहीं हो जाएगी? अभी तो देखो, अभी तो हमने उसकी हमने पूरी जो सिस्ट निकालने को तो मैंने यही कहा था कि इसको हम अबेंडन कर देंगे प्रोसीजर को, हमने सिस्ट नहीं निकालनी। व्हाट यू कैन डू एट द मोस्ट इज टू टेक बायोप्सी, और वो बायोप्सी मतलब आप ले भी सकते हो, उसको अबेंडन एज इट इज भी कर सकते हो। सिर्फ बायोप्सी लेने का जो एक इसमें जो बेनिफिट या आप जो इसकी जस्टिफिकेशन बता सकते हो वो ये कि ये यूजुअल एज नहीं है मैलिग्नेंसी की, लेकिन कम से कम ये कंफर्म हो जाएगा कि ये मैलिग्नेंसी है या नहीं है।
क्योंकि अगर ये क्योंकि मेलिग्नेंसी का डायग्नोसिस खाली अल्ट्रासाउंड पे या ट्यूमर मार्कर्स पे नहीं बनता, वो हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस होता है, बाकी सारी प्रोबेबिलिटीज होती हैं। तो इसलिए फॉर द कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस आप वो ले सकते हो, क्योंकि बाकी जो फिर आपने सारा करना है वो तो उसकी हिस्टोपैथोलॉजिकल कंफर्मेशन के बाद करना है। या फिर अगर आपको ये लगता है कि ये, क्योंकि उस सूरत में फर्ज किया ये अगर ये नहीं आता, ये मेलिग्नेंसी कंफर्म नहीं होती ऑन बायोप्सी, तो एटलीस्ट यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ कंजर्वेटिव सर्जरी, चाहे फर्टिलिटी स्पेयरिंग ना भी हो, कि कम से कम आप यूनिलैटरल सल्पिंगोफरेक्टमी कर सकते हो। उस सूरत में एक ज़ाहिर यंग पेशेंट ये ना 35 इयर्स की, तो उसमें दोनों तरफ की ओवरीज को या यूट्रस को निकालने की जरूरत नहीं है, विच यू हैव टू डू इन द केसेस ऑफ कंफर्म्ड मेलिग्नेंसी। तो हमारे जो एक्सटेंट ऑफ सर्जरी होगी वो उस पर डिपेंड करेगी। हमने सिस्ट को नहीं निकालना एज इट इज, और ऐसा कुछ नहीं होता कि एक छोटी सी बायोप्सी लेने से वो उसका फ्लेयर अप हो जाएगा इन जो मेलिग्नेंसी है जस्ट विद इन पीरियड ऑफ 7 to 10 days, ऐसा नहीं है। मैडम प्री मेनोपॉजल पेशेंट में मुझे सिस्ट का साइज बता दें कि कॉम्प्लेक्स सिस्ट में हमें सेफली ट्यूमर मार्कर्स कितने साइज पे मांगने चाहिए एग्जाम में? मतलब जैसे आपने बताया कि मोर देन 6 सेंटीमीटर, अब 5.5 सेंटीमीटर तक तकरीबन बॉर्डर लाइन पे आ जाता है। अब ये भी कोई 100% वो नहीं है कि जरूर कि 5.5 या 5 सेंटीमीटर की सिस्ट में ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, दो रेयरली। सिस्ट का साइज एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है, और खास तौर पे प्री मेनोपॉजल एज पे ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। यही सिस्ट का साइज जो है ये पोस्ट मेनोपॉजल पे कम हो जाता है, क्योंकि उसमें रूटीन के जो ओवुलेशन साइकिल है वो नहीं चल रहा होता। तो इस सूरत में जो प्री मेनोपॉजल में है, इसमें एक एवरेज साइज जो है वो 6 to 10 सेंटीमीटर तक का होता है। बट in case के you identify some other points on the ultrasound, जैसे कोई solid structure हो गया, पेपिलरी ग्रोथ होगी, सिस्ट वॉल थिकनेस ज्यादा है, सेप्टस की थिकनेस ज्यादा है, और उसकी एक्वजेनिसिटी फर्क है, तो 6 सेंटीमीटर की सिस्ट पे भी आप ये सारी चीजें मांग लोगे। और अगर फर्ज किया ऐसा कुछ नहीं है तो भी आपने 10 सेंटीमीटर की सिस्ट का साइज एक इम्पॉर्टेंट साइज होता है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड पे जरूरी नहीं होता कि सारी चीजें प्रॉपरली पिक हो जाए। तो कॉम्प्लेक्स सिस्ट 6 सेंटीमीटर की, जिसमें कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि कोई भी और चीज जो आप लोगों को पता है ऑलरेडी, तो उसके साथ आपने ट्यूमर मार्कर मांगने हैं। ठीक है मैडम, अल्ट्रासाउंड पे तो सेप्टेशन का थिकनेस और सिस्ट की थिकनेस कभी भी मेंशन नहीं होती अक्सर जो हम अल्ट्रासाउंड देखते हैं। लेकिन ये मेंशन की जा सकती है, अगर अच्छा अल्ट्रासाउंड करने वाला हो तो वो ये सारी चीजें मेंशन करता है, और ये एक इम्पॉर्टेंट उसका एक इंडिकेटर होता है फॉर सस्पिशियस या बॉर्डर लाइन या मैलिग्नेंट ओवेरियन सिस्ट। ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर। मैम इसमें टीबी का वर्कअप करेंगे इस केस में? टीबी का वर्कअप करेंगे मैम इस केस में? टीबी की कोई हिस्ट्री नहीं है, पेशेंट में कोई ऐसी लंबी चौड़ी हिस्ट्री नहीं है, लेकिन ये है कि अब इतना एक्यूट सिम्टम के साथ भी अमूमन प्रेजेंट नहीं करती ट्यूबरकुलोसिस। इसको कोई मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज नहीं है, जाहिर है उसमें ज्यादातर अगर इफेक्ट हो तो एंडोमेट्रियम इफेक्ट होती है या फैलोपियन ट्यूब्स इफेक्ट होती हैं, लेकिन इस तरह की एक्यूट जो प्रेजेंटेशन है वो अमूमन ट्यूबरकुलस एंडोमेट्राइटिस या उसके साथ अमूमन नहीं होती, unless secondary to the pulmonary metastasis, pulmonary tuberculosis है। मैडम मुझे आपने बताया कि अगर इसको मेरी बात सुन लो, लेकिन अगर फैमिली पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री हो या पेशेंट को कभी पास्ट में रहा हो ट्यूबरकुलोसिस, दो शी हैड बीन ट्रीटेड फॉर इट, फिर आप इसका वर्कअप जरूर करवाओगे। और इसका टीएलसी जो है बता देगा, टीएलसी डीएलसी ये सारी चीजें हमें बता देंगी। दीज आर आल्सो द इंडिकेटर्स ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। बाकी ईएसआर इसको अगर एंटीबायोटिक भी हम देंगे और इसकी अगर साइज कम ना हुआ और वो टेंडर ही रही, तो उसके बाद फिर हम इसकी बनती है इंडिकेशन टीबी वर्कअप की? नहीं, क्यों? वो अगर एब्सेस बना हुआ है तो जरूरी है कि वो ट्यूबरकुलोसिस की वजह से ही हो। वो एब्सेस तो किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बना होगा, वो एब्सेस तो ड्रेन करेंगे तो उसकी जान छूटेगी, वरना तो नहीं। तो एब्सेस को हमें एज अ रोल एब्सेस को हमें ज्यादा ड्रेन ही करना पड़ता है। हेलो मैम जी मैम, अगर जो है ट्यूमर मार्कर्स कॉम्प्लेक्स पर हम ट्यूमर मार्कर्स करवाते हैं और वो सब नॉर्मल आते हैं, ऑल 4 ट्यूमर मार्कर्स, तो हम लोग सीटी स्कैन मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? फिर क्यों मांगोगे सीटी स्कैन? क्यों मांगोगे?
मैम अगर कॉम्प्लेक्स ओवेरियन देखो सिस्ट है, अगर सस्पिशियस तो ऑफ आपको मैलिग्नेंसी है, अल्ट्रासाउंड पे अगर आपको अल्ट्रासाउंड पे चीजें नहीं सही पता चल रही और ट्यूमर मार्कर भी सारे ठीक आ गए, तो फिर आप सीटी क्यों मांगोगे? सीटी आप उस सूरत में मांगते हैं जहां पे आपका डायग्नोसिस नहीं बन रहा होता ऑन अल्ट्रासाउंड अलोन, ठीक है? तो या फिर आपने उसको डिफरेंट टिश्यू प्लेन्स को आइडेंटिफाई करना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है, लाइक इन एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, या फिर आपने मेटास्टेसिस को आइडेंटिफाई करना होता है, यानी जो एक बेसिकली जो स्टेजिंग ऑफ एनी मैलिग्नेंसी, उसमें इसका रोल आ जाएगा। इसमें क्या चीज है? लेकिन मैडम इमेच्योर टेराटोमा में तो ट्यूमर मार्कर्स सारे नॉर्मल होते हैं ना, इमेच्योर टेराटोमा मैलिग्नेंसी भी है और उसके ट्यूमर मार्कर्स बुक्स कहती हैं कि उसमें नॉर्मल होंगे सारे। इसमें इमेच्योर टेराटोमा नहीं, इमेच्योर टेराटोमा में भी जो है ट्यूमर मार्कर्स तो नेगेटिव होंगे, लेकिन ये है कि उसमें आपको अल्ट्रासाउंड पे चीजें पता चल जाती हैं, कुछ ना कुछ वो सॉलिड ट्यूमर के तौर पे हमें नजर आता है जो इमेच्योर टेराटोमा होता है। वो उसमें ओवेरियन सिस्ट वाली उस तरह से पिक्चर नहीं होती, बिकॉज दीज आर यूजुअली द सॉलिड येलो कलर सॉलिड ट्यूमर्स होते हैं। मैडम आपने की बात ना जी आपने स्वैब की बात की थी कि एंडो सर्वाइकल और यूरिथ्रल स्वाब उसमें क्या जब हमने एचवीएस भेज दिया, देखो अब बात वही है ना कि इससे आपकी ट्रीटमेंट में क्या फर्क पड़ेगा। आपने एचवीएस भेज दिया है, ठीक है, अब गोनोरिया के लिए यूरिथ्रल स्वैब और बाकी ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस के लिए भी आप एंडोविजाइनल और एंडो एनल स्वैब्स लेते हो, लेकिन ये है कि ये चीजें तो आपको एचवीएस पे भी पता चल जाएंगी। सेकेंडली क्योंकि देखो एंडो यूरिथ्रल और एंडो एनल स्वैब, मुझे सही सही बताओ आप लोगों में से कभी कितनों ने लिए हैं? हाउ कॉमनली यू डू इट? बहुत कम, कोई मेरा ख्याल शाजो नादरी कोई होगा जो लेता होगा, बिकॉज द यूजुअल ट्रीटमेंट विच वी गिव टू दीज पेशेंट्स कवर्स ऑल दिस ऑर्गेनिजम्स, गोनोरिया भी, क्लेमिडिया भी। तो जब आप उसकी ट्रीटमेंट ही कर रहे हो ब्रॉड स्पेक्ट्रम तरीके से और उसको कर रहे हो ट्रीट, तो फिर इसमें जरूरत क्या है इतने मुश्किल टेस्ट, और खास तौर पे ऐसे जो हम प्रैक्टिकली कर भी नहीं रहे होते और जो कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं होते और पेशेंट के लिए भी इतने कंफर्टेबल कन्वीनियंट नहीं होते। तो इस वजह से वो चीज बोलो जो प्रैक्टिकली करते हो। सिर्फ किताबों का नॉलेज हो जाना ठीक है, क्योंकि नॉलेज वाइज आपको अपडेटेड होना पड़ता है कि ये भी पॉसिबिलिटी है जो हो सकती हैं, आइडियल चीजें को आपको पता होना चाहिए, बट व्हाट यू डू प्रैक्टिकली इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा मेरा 1 मिनट जरा मैं कॉल कर लूं। जी एक्सक्यूज मी मैम, आई हैव वन क्वेश्चन। मैम मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। मैम मैंने एक पेशेंट देखे, जैसे आपने कहा ना कि कॉम्प्लेक्स सिस्ट है, मैम कॉम्प्लेक्स या मल्टीलोकुलर सिस्ट तो किसी भी साइज की हो, तो हमें मतलब ट्यूमर मतलब अल्ट्रासाउंड के ऊपर उसकी फीचर्स अगर हैं, लाइक उसमें सॉलिड एसिडिटी और प्रॉपर्ली प्रोजेक्शन वगैरह अगर नहीं भी है, लेकिन उसमें मल्टीलोकुलरिटी का एक फैक्टर तो मौजूद है, तो मैम उसको फिर हम ट्यूमर मार्कर्स तो मांगने चाहिए अगर वो देखो अब वही बात है ना कि एक अगेन हम यही बात बार बार कर रहे हैं कि देखो एंडोमेट्रियोमा ज्यादा कॉमनली होते हैं रिप्रोडक्टिव एज में। एंडोमेट्रियोमा पोस्ट मेनोपॉजल के बाद तो नहीं बनते, उसकी पैथोलॉजी खत्म हो जाती है, और एंडोमेट्रियोमा हमेशा कॉम्प्लेक्स सिस्ट के तौर पे नजर आते हैं। हेमरेजिक सिस्ट जो ल्यूडियल हेमरेजिक सिस्ट होती हैं वो ज्यादा होती ही रिप्रोडक्टिव एज में। तो ये वो चीजें हैं जो इन ट्यूमर मार्कर्स की और इवन जो अल्ट्रासाउंड अपीयरेंस है कॉम्प्लेक्स सिस्ट की, उसकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी को कम कर देती हैं, और इसीलिए जो उसका साइज होता है वो एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है ऑन इन प्री मेनोपॉजल एंड एज वेल एज इन पोस्ट मेनोपॉजल, क्योंकि उसमें जो साइज हम समझते हैं कि प्री मेनोपॉजल में इनसिग्निफिकेंट साइज है, वो सिग्निफिकेंट हो जाता है मेनोपॉज के बाद, क्योंकि उनकी सारा जो बेसिकली जो पैथोजेनेसिस वाला प्रोसेस है जो फर्क हो जाता है। तो यही वजह है कि पीक एज आती भी मेनोपॉज के बाद है इसमें।
अब कॉम्प्लेक्स सिस्ट का जो है वो अब ये जो रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी इंडेक्स की भी बात है, उसकी ज्यादा एप्लीकेबिलिटी होती ही पोस्ट मेनोपॉजल में, और उस पे सारे अल्ट्रासाउंड मार्कर्स आ जाते हैं, उस पे CA125 आ जाता है, उस पे अल्ट्रासाउंड की और ये सारी चीजें। तो इसलिए अगर तो उसमें क्लियरली पेपिलरी ग्रोथ्स हैं खाली सेप्टास पे या उसकी एकोजेनिसिटी पे, आप उसमें नहीं ये कह सकते कि हमें ट्यूमर मार्कर इसमें मांगने हैं। अलबत्ता जो हमने 6 सेंटीमीटर वाली साइज है या इवन लेस देन दैट साइज, अगर उसमें कोई पेपिलरी ग्रोथ, और पेपिलरी ग्रोथ की भी एक लिमिट दी हुई होती है कि पेपिलरी ग्रोथ है या सॉलिड स्ट्रक्चर है ऑफ मोर देन 7 मिलीमीटर, यानी लेस देन 7 मिलीमीटर की भी इतनी वो नहीं आएगी, इंपॉर्टेंस नहीं होगी, एंड दिस इज इन द प्री मेनोपॉजल एज। तो अगर उसमें कोई बहुत सिग्निफिकेंट मार्कर्स हैं लाइक पेपिलरी ग्रोथ और सॉलिड एरियाज ऑफ सिग्निफिकेंट साइज, तो फिर आपने मांगना है चाहे वो सिस्ट साइज कैसा भी हो। मैम हमारे पास जो अल्ट्रासाउंड आते हैं मोस्टली, मैंने तो अपनी ट्रेनिंग में या जितने भी देखे हैं उनमें तो कभी भी उन्होंने मेंशन नहीं किया होता कि कितनी पेपिलरी। लेकिन एक अच्छा अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट की बहुत, अगर आपको सस्पिशन लगी है ना कि ये ऐसा है, तो आप दोबारा भेजें कि हमें इन चीजों पे कमेंट चाहिए। या बाज दफा आपको देखो अल्ट्रासाउंड करने वाला तो एज इट इज कर रहा होता है, लेकिन अगर आप उसको लिख के भेजें कि मुझे ये भी देखना है, इसमें ये भी देखना है, ये भी देखना है, तो वो उस पर जरा फोकस करेगा। तो आप उसमें उसको सेप्टा की थिकनेस, उसका डॉपलर फ्लो, उसकी उसमें कोई सॉलिड स्ट्रक्चर है, पेपिलरी ग्रोथ है या नहीं है, उसकी यूनिलैटरल है, बायलैटरल है, ये सारी चीजें हैं जो कि फिर आप उसको लिख के भेजोगे कि मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो मैडम हाँ जी मैडम, मैंने ना एक 15 इयर्स की अनमैरिड बच्ची देखी थी, थैंक यू मैम। लेकिन ना बच्चा थी एब्डोमिनल पेन की कंप्लेन के साथ ना, 1 वीक बाद उसको सीवियर पेन हुआ था, उसकी वजह से वो इधर इमरजेंसी में एडमिट हुई थी आके, और उसको 20 वॉमिटिंग्स की एपिसोड हुई थी। जब मैंने उसका एग्जामिनेशन किया तो मैडम एग्जामिनेशन तो जाहिर एब्डोमिनल कर सकती थी क्योंकि अनमैरिड बच्ची थी, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उसकी जो अल्ट्रासाउंड पे ना कॉम्प्लेक्स सॉलिड सिस्ट दी थी अबाउट 5 सेंटीमीटर इन साइज। तो मैडम मैं इसमें थोड़ा, अब उसकी पेन अब उसकी सेटल हो गई, जर्म सेल ट्यूमर की प्रॉब्लम, जर्म सेल ट्यूमर वाली एज है ना इसकी, और बाज दफा कोई टॉर्शन हो उसमें भी वॉमिटिंग हो सकती है। तो खासतौर पे अगर पेशेंट एक्यूट एब्डोमेन के साथ है, वॉमिटिंग के साथ, तो पेरिटोनियल इरिटेशन, डायरिया, वॉमिटिंग करता है, तो उसमें तो टॉर्शन ऑफ डर्माइड सिस्ट इज वेरी कॉमन बिकॉज डर्माइड सिस्ट हैज अ लॉन्ग पेडिकल व्हिच कैन अंडरगो टॉर्शन। तो इसलिए जो बिल्कुल यंग एज पेशेंट्स होते हैं या मतलब इसमें अगर वो सिस्टिक स्ट्रक्चर नहीं है, तो उसमें ज्यादातर तो यही चांसेस होते हैं जर्म सेल ट्यूमर्स का, एंड टेराटोमा इज वन ऑफ दीज, क्योंकि जो डर्माइड सिस्ट है या मैच्योर टेराटोमा है, इसमें डिफरेंट जो है वो जर्म लेयर्स की रिप्रेजेंट वो होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन इमेच्योर टेराटोमा इज जस्ट अ सॉलिड ट्यूमर, उसमें कोई डिफरेंट लाइंस पे स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुए होते, एंड सो आर द अदर्स जो इनके जर्म सेल ट्यूमर्स हैं वो भी। तो इनमें फिर ट्यूमर मार्कर पर्टेनिंग टू जर्म सेल ट्यूमर्स आपने करवाने होते हैं, जिसमें अल्फा कीटोप्रोटीन्स आ जाती हैं, इनहिबिन आ जाती हैं, और एचसीजी भी आ जाता है, एलडीएच आ जाता है, ये सारी चीजें हैं जो आपने इसमें यंग एज में करवानी होती हैं। मैडम 5 सेंटीमीटर करवाएं मैडम, तो मैडम मेरी 5 सेंटीमीटर का भी है, फिर आपने उसमें करवाना है। वही बात है ना, यही चीज तो मैं बार बार कह रही हूँ कि फिर ये देखो कि उसमें कौन सा पैरामीटर पॉजिटिव। अब जो डर्माइड सिस्ट है वो तो बाद दफा 5 सेंटीमीटर से भी छोटी हो सकती है, वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करती है, तो डर्माइड सिस्ट तो छोटे साइज की हो, वो जरूरी नहीं कि बहुत बड़े साइज की हो, लेकिन अब जो डर्माइड सिस्ट होती है उसके स्ट्रक्चर हमें नजर आ जाते हैं, सॉलिड स्ट्रक्चर के तौर पे वो आते हैं और मल्टीपल होते हैं वो, तो इस वजह से ये इसके अल्ट्रासाउंड पे आप ये देखो, कंफर्म करो कि ये बेसिकली कौन सा स्ट्रक्चर है जो अल्ट्रासाउंड वालों ने दिया हुआ है। और अगर आप कॉम्प्लेक्स प्लस सॉलिड मैस, मतलब कॉम्प्लेक्स प्लस मतलब सॉलिड दी हुई थी कि वो सारी सॉलिड है, सिस्टिक कंपोनेंट वो तो जर्म सेल ट्यूमर्स पे सीधा फिर इन बैठती है, तो उसमें तो आपने कराने ही कराने। सॉलिड अगर पूरा का पूरा ट्यूमर ही सॉलिड है तो वो तो जाहिर है या ओवेरियन फाइब्रोमा है या जर्म सेल ट्यूमर्स है। फाइब्रोमा तो इतना कॉमन नहीं होता यंग एज पे, जर्म सेल ट्यूमर्स बहुत कॉमन होते हैं यंग एज पे, तो उसमें तो आपने ट्यूमर मार्कर्स, क्योंकि डिफरेंट ट्यूमर मार्कर्स होते हैं। तो अब मेरा ख्याल है आप जरा इसको वाइंड अप करें।
मैम एक मैडम मेरा लास्ट क्वेश्चन था, प्लीज मुझे बताइएगा मैडम, ये जो अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी जो है, ये जो हम यंग एज में अगर कोई पेशेंट ट्यूमर्स के साथ आता है या कोई मैस के साथ आता है, तो हम उसमें बजाय इसके कि हम उसे खोलें और उसकी फिर देखें, उसको बायोप्सी लें, अगर फ्रेश फ्रोजन हमारी इसकी फैसिलिटी ना हो फ्रोजन सेक्शन की, मैडम हम उसमें अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी ले सकते हैं? ले सकते हैं, इसको ट्रू कट बायोप्सी भी कहते हैं, अल्ट्रासाउंड गाइडेड भी ले सकते हैं, ये दोनों तरीकों से पॉसिबल है। लेकिन मैडम उससे फिर वो जो कहते हैं कि स्पिलेज हो जाएगा, ये तो ब्लंडर हो गया, आपने कह दिया इसमें स्पिलेज हुआ, तो आपने इसको 1 3 कह दिया। कोई बात है ना कि आप जो कैनुला उसमें डालते हो, उसमें आपने बस बायोप्सी लेकर निकल आना होता है। स्पिलेज वाले देखो, अब आपने वे करने होते हैं रिस्क एंड बेनिफिट्स। तो फ्रोजन सेक्शन में की फैसिलिटी अगर नहीं है, फ्रोजन सेक्शन इज द बेस्ट थिंग, जो आप पहले ऑलरेडी पैथोलॉजी डिपार्टमेंट को इनलाइन करते हो और उसके बाद फिर आप, अगर वो नहीं है तो अगर आपने कंजर्वेटिव सर्जरी का प्लान करना, वो तभी कर सकते हो ना जब आपको पता हो कि ये ट्यूमर टाइप क्या है, बॉर्डरलाइन मैलिग्नेंसी है या मैलिग्नेंसी है, और मैलिग्नेंसी है भी तो सेल टाइप क्या है। तो ये तभी की जा सकती है जबकि आपको पहले से हिस्टोपैथोलॉजी का पता हो, और वो तभी पता चल सकता है, खाली अल्ट्रासाउंड पे तो आप नहीं डायग्नोज कर सकते, ना ट्यूमर मार्कर्स पे। तो ये तब ही पता चल सकता है जब आपने उसको हिस्टोपैथोलॉजी देखी हो और वो उसका तरीका क्या है, ट्रू कट है या एफएनएस, ये फाइन नीडल एस्पिरेशन ही ज्यादा हम करते हैं, तो या ट्रू कट भी हो सकती है जो अमूमन सर्जन से हम करवाते हैं, या अल्ट्रासाउंड गाइड, बेसिकली तो अल्ट्रासाउंड गाइडेड ही होती है जो एफएनएस भी होती है, क्योंकि हमने उसमें एरिया मार्क करना होता है कि हमने बायोप्सी लेनी कहाँ से है। ये ना हो कि सिस्ट फ्लूइड हम ले लें जिसकी कोई ऐसी वेटेज नहीं है, फिर वो हम उसके सॉलिड स्ट्रक्चर से लेते हैं। क्योंकि मैडम हमारे सेटअप में तो ये अल्ट्रासाउंड गाइड बायोप्सी होती है, लेकिन एक एग्जामिनर थे, उन्होंने बहुत ज्यादा माइंड किया कि आपने उसकी स्टेज को चेंज कर दिया। देखो हर एक का एक अपना व्यू पॉइंट होता है, ये मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ कि हर एग्जामिनर का एक अपना व्यू पॉइंट है और उनको अपने व्यू पॉइंट की जस्टिफिकेशन पता होती है। ऐसा नहीं है कि वो कोई ब्लंडर मार रहे होते हैं, उनको उनके पीछे उसकी एक रीजन होती है, जो उनके ज़हन में चीज होती है उसके पीछे रीजन होती है। अगर आपने एक अपने पॉइंट को जस्टिफाई कर दिया अच्छे तरीके से और आपने इसको कहा कि इसकी मैंने कंजर्वेटिव सर्जरी प्लान करनी है और वो नहीं हो सकती जब तक मुझे इसकी हिस्टोपैथोलॉजिकल टाइप पता ना हो, और हिस्टोपैथोलॉजिकल टाइप मुझे कैसे पता चलेगी, या तो मैं इसकी एफएनएससी करूं या ट्रू कट बायोप्सी करूं या फिर फ्रोजन सेक्शन टेक्निक को। अगर मेरे पास फ्रोजन सेक्शन टेक्निक नहीं है तो एटलीस्ट मैं इसमें ये कर सकती हूँ। तो इसलिए वो कहती है मैडम, वो कहती है वो उससे खोलें, आप उसकी बायोप्सी लें अच्छे तरीके से, नीट एंड क्लीन तरीके से बायोप्सी लेके उसको बंद करें, फिर उसकी जब रिपोर्ट आएगी स्पिलेज अगर होना हो तो उसमें भी हो जाता है, एफएनएससी का स्पिलेज और उसका भी स्पिलेज, और ये ट्रू कट बायोप्सी तकरीबन इसी तरह की होती है कि हम उसको थोड़ा सा दे के हम कर रहे होते हैं। हमने उसको पूरा खोल के उसकी बायोप्सी लेके तो उसको बंद नहीं करना होता। नीट क्लीन तरीका क्या होता है, उसमें आपने स्टिचिंग या पॉटरी तो नहीं करनी, वो तो स्टैंड ही नहीं करेगा। सो स्टिल देयर कैन बी स्पिलेज विद दिस। अब अगर आपने मजीद इसको जस्टिफाई करना हो तो फिर आपके पास ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि एफएनएससी से कितना स्पिलेज होता है और जो आप ट्रू कट बायोप्सी करते हैं उससे कितना स्पिलेज होता है। यहाँ पे फिर आप एग्जामिनर को जस्टिफाई कर लेते हो, और कोई भी ऐसा एग्जामिनर नहीं होता कि जिसको आप ये फैक्ट्स बताओ और वो ना माने। इतने अनरीजनेबल ज्यादा बेहतर क्या है, एफएनएससी बेहतर है कि ट्रू कट बेहतर है? ज्यादा कर सकते हैं ना, दोनों तरीके हैं ना, ये सारे तरीके हैं, लेकिन उसमें जस्टिफिकेशन सिर्फ इस बेस पे होती है कि इसमें इतना स्पिलेज, इसमें इतना स्पिलेज, और अगर हम लेप्रोटमी करके करते हैं तो उसमें इतना स्पिलेज। स्पिलेज उसमें भी होता है, ऐसा नहीं है कि उसमें स्पिलेज नहीं होता। ठीक है मैम, इसमें जो पेशेंट मैंने अभी जो देखी वो मैम 27 ईयर्स की पेशेंट है और उसका ना तकरीबन 12 से 16 सेंटीमीटर का ना मैस है लोअर एब्डोमेन में विद लो लिमिट रीचेबल और सिस्टिक टू फर्म कंसिस्टेंसी है। मैम मैंने उसका पेशेंट ने मुझे खुद बताया कि पहले उसका CA 125 हुआ था जो 51 आया था और रिसेंटली इसका 110 हो गया है। और इसके अलावा मैम फिर मैंने उसकी सिटी स्कैन की रिपोर्ट मतलब अल्ट्रासाउंड तो हुआ था जिसके ऊपर उन्होंने सिर्फ राइट एडनेक्सल मैस दिया हुआ था। जो सिटी स्कैन की रिपोर्ट थी उसके ऊपर सिस्टिक सॉलिड मैस था और साथ में मैम उन्होंने दिया हुआ था कि एकोजेनिक है और मल्टीलोकुलर है, कॉम्प्लेक्स मल्टीलोकुलर सिस्ट दी हुई थी राइट एडनेक्सा में। मैम अगर मतलब वो प्री मेनोपॉजल है और अनमैरिड है, 27 इयर्स की लड़की है और उसके जो LDH, लेकिन देखो फिर आपने उसकी सर्जिकल स्टेजिंग करनी है, क्योंकि देन द रेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट विल डिपेंड अपॉन सर्जिकल स्टेजिंग।
और सर्जिकल पेशेंट्स लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर थिंग। उसमें तो सर्जरी होनी ही होनी है, और सर्जरी के टाइम पे आप उसकी स्टेजिंग भी करोगे, उसमें मैश भी निकालोगे और वो स्टेजिंग भी हो जाएगी। और मैम ठीक है, और उसमें जो स्टेजिंग के बाद मैडम फ्रोजन सेक्शन कर सकते हैं, ओपरेक्टमी होगी या सिस्टेक्टमी होगी या फिर ये डिपेंड करता है उसकी ट्यूमर टाइप पे। देखो वही बात है ना, यहाँ पे फ्रोजन सेक्शन वाला रोल आ जाता है, और वही बात जो इन्होंने पहले भी डॉक्टर साहब ने की है कि इस पे हम पहले फिर हिस्टोपैथोलॉजी हम कर सकते हैं। और क्योंकि अगर इसमें हम कंजर्वेटिव सर्जरी कर रहे हैं, अगरचे अव्वल तो इतना बड़ा मैस जो है उसमें तो क्योंकि जो जर्म सेल ट्यूमर्स होते हैं उसमें कंजर्वेटिव सर्जरी कैन बी एट एनी स्टेज, लेकिन जो बाकी जो एपिथेलियल सेल ट्यूमर्स हैं उसमें सर्जिकल जो सर्जरी हम कर सकते हैं कंजर्वेटिव सर्जरी, दैट इज ओनली लिमिटेड टू स्टेज 1A1। उसके बाद हमें फिर इसमें रेडिकल सर्जरी ही करनी पड़ती है। तो इसलिए अगर हम इसमें ऐसे केसेस में जहां पे इट्स मस्ट टू डू कंजर्वेटिव सर्जरी इफ द कंडीशन अलाउस, ठीक है, हमने ऐसा नहीं करना कि पेशेंट की कंडीशन अलाउ नहीं करती हम फिर भी कंजर्वेटिव सर्जरी करें, पेशेंट की लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस सूरत में आप इसकी हिस्टोपैथोलॉजी पहले कंफर्म कर सकते हो। मैम मींस कि मेरा ख्याल है आप इसको बंद ना करें, अभी अब काफी टाइम हो गया। मैम अल्ट्रासाउंडेड, मैम सॉरी प्लीज छोटी सी बात, मैम अल्ट्रासाउंडेड गाइडेड बायोप्सी आप कह रही हैं पहले करें और उसके बाद फिर इसको जो है सॉरी दोबारा से बेटा बोलो। मैम आप कह रही हैं कि इस पेशेंट के अंदर पहले मुझे अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी की तरफ जाना चाहिए और उसके बाद मैं वही कह रही हूँ ना कि देखो इसमें 2-3 चीजें हैं ना, ये सारी चीज हमने डिस्कशन अभी की है कि अगर तो फ्रोजन सेक्शन की चीज अवेलेबल है तो वो कर लो, अगर नहीं है तो कम से कम फिर उसमें बायोप्सी करके देख लो। और बायोप्सी करने के जो डिफरेंट तरीके हैं हमने अभी डिस्कस कर लिए हैं, क्योंकि अगर हमने इसमें कंजर्वेटिव सर्जरी का प्लान है जो हम ऐसे पेशेंट्स में प्लान कर रहे होते हैं, हमारी अपनी भी यही विश होती है पेशेंट के साथ साथ, तो उसमें तो फिर हम तभी कंजर्वेटिव सर्जरी कर सकते हैं जब हमें ट्यूमर टाइप पता हो। ठीक है, और मैम उस पेशेंट की ना ये हम बायोप्सी उस वक्त भी लेते हैं, ट्रू कट बायोप्सी तो बहुत कॉमनली ली जाती है उन केसेस में भी जो स्टेज 4 पे पेशेंट होते हैं, क्योंकि उनको फिर हम कीमोथेरेपी अकॉर्डिंग टू दैट सेल टाइप दे के फिर हम उसके सेकंड स्टेप सर्जरी कर रहे होते हैं। मैम ऐसे लाइक ये इस मरीज में मैम सिर्फ पेन है और थोड़े बहुत प्रेशर सिम्टम्स है और 6 मंथ से इसका मैस जो है ना वो सडनली इंक्रीज हुआ है और मैम मतलब इसमें मैक्सिमम चांसेस तो ये है कि जर्म सेल ट्यूमर है और इसके अलावा पेशेंट की ना पॉजिटिव हिस्ट्री है ट्यूबरकुलोसिस की, लाइक उसकी ना 10 years बैक उसकी जो अपनी पर्सनल सिस्टर थी जिसके वो टेक केयर करती थी जिसको उसको टीबी था, ऑल्दो पेशेंट के अंदर कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन ट्यूबरकुलोसिस अगर है भी तो वो इतना बड़ा मैस नहीं कर सकता। ओके थैंक यू मैम, बस मुझे ये कंफर्म नहीं कर सकता और उसमें इतना सॉलिड सिस्टिक स्ट्रक्चर वाली चीज नहीं होती। मैडम अगर फाइब्रॉइड की हम लोग टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी करने लगे हैं तो उससे पहले मैडम जरूरी है कि हमने एंडोमेट्रियम जी मैडम अगर कोई भी फाइब्रॉइड के लिए हम लोग अगर करने लगे हैं टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी तो उससे पहले मैडम जरूरी है कि हम लोग एंडोमेट्रियल सैंपलिंग लेके प्रोसीड करें? नहीं, देखो दैट अगेन डिपेंड्स एज के हिसाब से। अगर तो फर्ज किया ये पोस्ट मीनोपॉजल में है या पेरीमीनोपॉजल में भी है, 50 years है, तो उसमें तो आप यू कैन गो फॉर द TH and BSO, क्योंकि ओवेरियन फंक्शन तो ऑलरेडी स्टॉप दी है, तो उसमें तो एंडोमेट्रियल बायोप्सी को बाईपास किया जा सकता है। अदरवाइज इफ यू आर प्लानिंग टू कंजर्व द ओवरीज, ठीक है, ये हम एक जनरल क्वेश्चन के तौर पे डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपने वेरिएंट कंजर्वेशन का आपने सोचा हुआ है तो उस सूरत में डेफिनेटली यू हैव टू रूल आउट एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी। उसके लिए पहले आप करोगे पाइपल से कर लो ना, मरीज को एनेस्थीसिया दो, पाइपल से तो हो सकती है एनी टाइम ऑन OPD बेसिस, और उसकी रिपोर्ट के बाद फिर खासतौर पे जब मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होती हैं उसमें तो फिर करना जरूरी हो जाता है। मैम फिर इस जो मैंने पेशेंट आपसे बात की मैम जो अनमेरिड 12 to 16 सेंटीमीटर का मैस है, मैम जो मैंने अभी आपको पेशेंट बताई थी मतलब 12 to 16 सेंटीमीटर का मैस है, तो मैम इसमें मेरे DDs जर्म सेल ट्यूमर जिसमें इनमेच्योर टेराटोमा हो सकता है और फिर उसके बाद फिर एपिथेलियल सेल ट्यूमर्स भी उसके डिफरेंशियल में आ जाएंगे, लेस लाइकली, लेकिन जर्म सेल ट्यूमर्स विल बी ऑन द टॉप ऑफ लिस्ट। ओके थैंक यू मैम। ओके तो नेट
जी मैडम हमने ये एग्जाम में कहीं बताना है कि पेशेंट ये एग्जाम में नेट होता है पाकिस्तान में? होता है, लेकिन उसकी जस्टिफिकेशन आपको बतानी पड़ेगी मैम। मैडम चले, मेरा ख्याल है अब हम इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। बाकी मैडम पाकिस्तान में नेट होता है, कहाँ पे होता है मैडम?